गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो कहाँ थे कल? चलो आगे आ जाओ। चलो गुड मॉर्निंग। फेस ट्रैकर। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो खुशी हो गई होगी ज्यादा ना, टाइम ज्यादा मिल गया, खुशी ज्यादा हो गई, पर इतना भी खुश नहीं होना है, ठीक है? जैसे कल मैं फ्री हो गया क्या? तुम्हें तो पढ़ने का था, मेरे को ऐसा सिलेबस कैसे होगा, बट कैसे होगा, मैंने फिजिकल करा रखा था। कल मैंने सिलेबस रिव्यू किया है पूरी रात ना। लगभग मैंने बहुत सारी चीजें करा रखी है हर टॉपिक में, मेरे को उतनी दिक्कत नहीं होती। जैसे ना कुछ चीजें बची हुई उनको अभी करवाते हैं, देखते हैं जरा। हेडिंग डालो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हेडिंग डालो। ठीक है ठीक। तो दिवाली क्या बाहर की आवाज आ रही थी, पटाखे की, तो तमाशा मचा दिया बच्चों ने बाहर पे। स्पोर्ट्स डे चल रहा है ना उनका वहां बाहर, इतने दिनों से। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन 1,3 डाइपोलर साइक्लो। अपना सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा कर देना। हाँ मैं तो देखता हूँ, मैं जल्दी करवाऊंगा, मेरा तो ये नहीं है, मैं टाइम से निपटा दूंगा। चलो आगे आगे, पहले लिखते हैं जरा। हाँ हाँ तुम्हारी शोल खुश हो गई, लिखो जरा। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 1,3 dipolar cycloaddition reaction like does this and the reaction. 1,3 dipolar cycloaddition reaction. 1,3 dipolar cycloaddition reaction। और कुछ भी ना ग्रुप में मत किया करो यार, आप वीडियो ढंग से नहीं देखते हो क्या? जिसकी जो मर्जी आती है कुछ भी डालते रहते हो ग्रुप में। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन लाइक, मैं ऐसा करता हूँ, मैं किताब में कॉपी में जो लिखा रखा है एज इट इज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे भी नहीं इधर से उधर कुछ नहीं कहता, जैसे आता है ना वो याद करके। मुझे याद रहता है लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ एक वर्ड न छूटे। उसके बाद भी आप लोग वीडियो तक ढंग से नहीं देख रहे। क्या बोलो तो बोलो क्या। लाइक डाइल जेडर रिएक्शन, लाइक्स डाइल जेडर रिएक्शन। अब पढ़ा दूंगा मैं आपको सारा, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, अब सारा मैं ही पढ़ाऊंगा। लाइक डाइल जेडर रिएक्शन, लाइक डाइल जेडर रिएक्शन, लाइक डाइल जेडर रिएक्शन is a 6 pi is a 6 pi electron pericyclic, is a 6 pi electron pericyclic reaction, pericyclic reaction, but it differ, pericyclic reaction, but it differ, but it differ, but it differ, but it differ from Diels-Seder reaction, but it differ from Diels-Seder reaction, Diels, but it differ from Diels-Seder reaction, but it differ from Diels-Seder reaction, but ये किससे डिफर होती है? Diels-Seder reaction से, but it differ from Diels-Seder reaction. In that 4 pi component, in that 4 pi component, in that 4 pi component, 4 pi component से क्या करती है? डिफर करती है, जो उसमें होता है वो इसमें नहीं होता है। In that 4 pi component, like 4 pi component, diene is here, 4 pi component, diene here is
whole pi component line here is 1,3 typo laser, 1,3 typo laser, 1,3 dipole, 1,3 dipole atom, 1,3 dipole laser, 1,3 dipole laser, 1,3 dipole laser, 3 atom unit, 3 atom unit containing at least, पहले लिख दो आप है containing at least, containing at least, containing at least heteroatom, contain at least heteroatom and contain at least heteroatom, heteroatom and which is represented by, which is represented by a Jupiter ion intermediate, which is represented by, which is represented by, which is represented by, which is represented by Jupiter ionic intermediate, which is represented by Jupiter, Jupiter ionic intermediate, which is represented by Jupiter ion intermediate, जिससे किससे दिखाते हैं Jupiter ion intermediate से, Jupiter ion intermediate, Jupiter ion, Jupiter ionic intermediate होता है ऑक्टेट स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर, 2 pi component is called dinophile, 2 pi component, 2 pi component is called, 2 pi component is called, 2 pi component is called dinophile, 2 pi component is called dinophile, 2 pi component is called dinophile, 2 pi component को क्या कहते हैं, डाइनोफाइल कहते हैं। चलो आगे आते हैं, 2 pi component is called dinophile, 2 pi component is called dipolarophile, 2 pi component is called dipolarophile rather than dinophile, called dipolarophile, component is called dipolarophile rather than dinophile, rather than dinophile, rather than dinophile। चलो आगे आ जाओ, थोड़ा ये समझ में आया, पहले लिखा दो एक फिर दिखाता हूँ, ठीक है। डाइनोफाइल, ठीक है, डाइनोफाइल इज अ कंपाउंड, डाइनोफाइल इज अ कंपाउंड, वहां कॉमा डालना, इज अ कंपाउंड, इज अ कंपाउंड, इज अ कंपाउंड कंटेनिंग, आपकी फाइट यूपी के लड़कों से होगी बहुत तगड़ियां जो आप तैयारी कर रहे हो, इज अ कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जिन लोगों के पास रिजर्वेशन जैसी है जिन पे, तो EWS हो गया, जो भी है आपके पास, जिसके पास है, आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 5 से 10 नंबर का अंतर आता है, ठीक है। यूपी वालों की तो मेरिट आपसे पीछे जानी है, लेकिन वहां के लड़के चीर फाड़ वाले आएंगे जो आएंगे आपके साथ, ठीक है। खुद मेरे साथी हैं 3-4 मेरे दोस्त, ओके, पहले उन्होंने IIT बॉम्बे से PhD की, 1-2 साल किया, मन नहीं किया, फिर हम सारे लोग एक लॉन्ग ट्रिप पे गए, फिर उसने भरा, वो 3-4 बार लगातार इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, अपन सारे जो कम्युनिटी है अपनी जहाँ भी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से, एग्जाम दिमाग का खेल है, वहां पे बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं नेट वाले को, नेट वाले का जो मेन लफड़ा है वो बेसिक नहीं पढ़ता है, 11-12 से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में आ रहे हैं, वो यहाँ पीछे रह जाता है। यहाँ हायर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, लेकिन ना 11-12 के ये, चलो वो NCERT बैच कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उसी में, तो यहाँ 8-10 नंबर उनसे आगे रह जाना, ऑब्वियसली 8-10 नंबर आगे रह जाओगे तो वो फिर आप उनके बराबर आराम से पहुंच जाओगे। ये फिजिकल इस पे मैं ज्यादा वर्क कराऊंगा आपका, लेकिन ये जो NCERT का 10 से 12 से 14-15 350 नंबर का पेपर है,
सिलेबस मेरी नजरों के सामने रहता है, ठीक है। 300 नंबर का पेपर है ना, 150 क्वेश्चन, तो मान के चलो 25 से 30-35 नंबर, वो वहां थोड़ा ढीला कर देते हैं, वहां थोड़ा आप आगे रहना उनसे, ठीक है, वहां पीछे मार दोगे फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे आ जाओ, पीछे वाली स्लाइड कह रहे थे इसमें 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन डाइल सेल्डर रिएक्शन के जैसे ये कह रहा है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, बट ये क्या है, डिफर है किससे, डाइल सेल्डर रिएक्शन से, जिसमें 4 पाई का कंपोनेंट क्या होता है, डाइन होता है, और यहाँ क्या है, 1,3 डाइपोल इज 3 एटम यूनिट कंटेन एटलीस्ट एक और 3 पे डाइपोल जनरेट होना है, वो कंटेन एटलीस्ट एक हेट्रो एटम, उसमें क्या होना है, एक हेट्रो एटम होना है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जिविटर आयन इंटरमीडिएट। अभी बनाते हैं, क्या है ये, कुछ नहीं, ये करने के बाद समझ आएगा। अब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें जो 2 पाई का कंपोनेंट है उसे क्या कहते हैं, डाइपोलरोफाइल। क्या कहते हैं उसे, डाइपोलरोफाइल। कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, क्यों बढ़ा दे कोर्स की वैलिडिटी है, 40,000 के कोर्स की फीस में 4,000 में बेच दो क्या? आप खुद ही देखो ना, इस कोर्स की फीस कौन ले रहे हैं, इतना कोर्स कोई नहीं देता, सब कुछ इसी में एक ही के अंदर। मैंने तो आपके भले के लिए दिया, फरवरी में पेपर आ गया, बेसिक भी दे दिया, एडवांस भी, फरवरी तक देखते हैं। पढ़ो यार, आप दिमाग खराब मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो आप, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो चलो ओजोन लिखो, 1,3 डाइपोल यूनिट, 1,3 डाइपोल यूनिट, आप पढ़ो, ये उल्टी सुल्टी बातें मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। 1,3 डाइपोल यूनिट, 1,3 डाइपोल यूनिट, 1,3 डाइपोल यूनिट, पहले ही सारा दे रखा है ना, आप देख रहे हो कुछ भी, लोग तो देखते ही नहीं है रिकॉर्डिंग, वो तो सोचते हैं लास्ट में आधा होगा आधा नहीं होगा, पहले ही आपको सब कुछ दे रखा है, उसके बाद में ऐसा मत करो। पर ऐसे ना, ये ऐसा, इस पे नेगेटिव, 1 और 3 पे आपको डाइपोल क्रिएट करना है, क्या है, 1 और 3 पे डाइपोल क्रिएट करना है, तो मैं 1 और 3 पे डाइपोल क्रिएट कराऊँ इसका, तो यार देखो ओजोन का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा, 1 और 3 पे डाइपोल बनाना है, ये ऐसा ये ऐसा। आप लोग कल से सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके यही कह रहे हैं कि डेट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ, कितना पहले दे रखा, आप खुद ही सोचो ना, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर अगस्त, 21 से बताया, अगस्त 21 अगस्त 21 सितंबर 21 नवंबर 21 जनवरी 21 जनवरी 21 नवंबर, ठीक है, आप पढ़ो, बस पढ़ो, मेरा पढ़ने से मतलब है। आप लोगों को पता नहीं क्या है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। चलो मैं इसको ऐसा बना दूं, जैसे कैसे, मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूं जैसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसा कर दूं। पढ़ने पे कम ध्यान है आपका, वैलिडिटी पे ज्यादा ध्यान है। फिर मैं डांटता हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, पता है। चलो 2 2 4 इसके सराउंडिंग में 2 2 4 और 1 5, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो 1 3 पे डाइपोलरोफाइल, 1 और 3 देखो, 1 3 है कि नहीं है, 1 2 और 3, 1 और 3 पे आना है कंपोनेंट में, तो ये तो आपका हो गया क्या, 1 3 4 पाई का कंपोनेंट। अब आपको नेक्स्ट क्या देखना है, चलो आगे आ जाओ, आगे बात करें, चलो ठीक, अब पता नहीं क्या सीन है, चलो आ जाओ। ये बातें मैसेज में भी तो हो सकते हैं सर, ये कर लो, अब यहीं पे यहीं पे डिस्कस, Rn3, वो मैं कहा पढ़ो यार, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, बस आप पढ़ने से मतलब रखो। 2 2 4, अरे अरे अरे, 2 2 4 5 और 1 6 नेगेटिव, 2 2 4 पॉजिटिव, ये लोन पे अपन ने क्या कर दिया, इसका ये यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, जो सिखा रहा है 1 3 पे डाइपोल क्रिएट कराना है, 1 और 3 पे डाइपोल क्रिएट कराना है, इस पे एक लोन पेयर, इस पे एक लोन पेयर नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस एन पे ऑलरेडी नेगेटिव है, 1 2 2 4 और 1 5, इसके सराउंडिंग में 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, इसलिए इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 3 पे डाइपोलरोफाइल। वो बात की बात है यार, देखो मेरे को, आपको ऐसा लग रहा होगा ना, मैं तो पैसे से उतना लेना देना नहीं है, आप लोग सिर्फ पढ़ो, तो आप ये सोच रहे होंगे ना, मैं ऐसे कहूंगा ना, जिससे आपकी वैलिडिटी बढ़ेगी, आप पढ़ने में डील कर दोगे, समझ रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ
वो लो 6-7 घंटे अंग्रेजी को दो, 6-7 अंग्रेजी और हिंदी को 7-8 घंटे दो, 4-5 घंटे इसको दो, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है। बरकसी तो बुरा, ये क्या है इसका नाम, वर्मिकसी तो बुरा मान जाते हैं, वर्मिका बुरा नहीं मानना है, बढ़ा देंगे, बस आप टेंशन मत लो। वर्मिका बुरा नहीं मानना, मैं कर दूंगा, बस आप सिर्फ पढ़ो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, फिर आप हल्के हो जाओगे अगर मैंने कहा यस। चलो आगे आ जाओ, पढ़ो अभी, आप पढ़ो यार, ये बात की बात है। ऐसे नो, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या लिखो? ये ऐसा है। अभी तो यहाँ जिंदगी में थोड़ा कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं होती थी। चलो आगे आ जाओ, ये ऐसा है, फिर आपको मैं ऐसा क्यों बना, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बना के दे रहा हूँ मैं? अच्छा ठीक है, चलो नाइट्रोजन करो यहाँ। बनाने की फ्रीक्वेंसी मत तोड़ो तुम, फिर पिटोगे मेरे हाथ से। चलो एक और अभी अभी देखेंगे ये क्या है, या नीचे से कोई ऐसा कंपोनेंट ले आएंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, नेगेटिव का अटैक कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ बनेगा। उसकी और अभी मत जाओ आप, हमें यही बढ़ना है इसकी। चलो इस पे बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है इसके साथ, तो 1 2 3 और 1 4 इस कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बर्मिका, वही बर्मिका, बुरा नहीं मानना। हाँ, मैं आपके एज अ फैमिली जैसा हूँ, ये मत सोचना, क्योंकि मेरे सर खुद मुझे इतना अच्छा मानते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ जहां जाए वहां अपने बच्चे रहे। 1 2 3 इस पे पॉजिटिव, और 1 और 3 पे क्या बन गया, डाइपोलरोफाइल। 1 3 पे डाइपोलरोफाइल, ये कैसे बनाते हैं ये सीख लो आप, पहले स्टार्टिंग यही है। 1 2 और 1 3, 1 और 3 पे डाइपोलरोफाइल। ब्रैकेट में लिख दो जरा, यहाँ पे लिखो, इसमें डाइन के साथ इसमें 5 मेंबर रिएक्शन करके 5 मेंबर रिंग बनेगी, फिर थोड़ा समझ में आ जाएगा, अभी देखते बस। रिएक्शन करने पर 5 मेंबर रिंग बनेगी, रिएक्शन करने पर 2 पाई कंपोनेंट से क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। चलो आगे आ जाओ, मैं वर्मिका बुरा नहीं माना, पढ़ो अभी, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, हिंदी के लिए एक बुक है, मैंने आपको कल नहीं भेजी ना, हिंदी के लिए एक बुक ले लेना। क्या है बुक का नाम, मैं आपको बुक का नाम बताना भूल गया, एक बुक खरीद लेना आप, क्योंकि ये सारे उत्तराखंड में इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी ये क्लास में अमित की लूंगा, ठीक है, वो मेरा फ्रेंड है, हर एक एग्जाम निकाल रखा है उसका, अभी तक लेक्चरर सेलेक्टेड है, उसे पिछले 2 साल में 7 से 8 जगह सिलेक्शन ले लो, बस उसको यूकेपीएससी का मेंस लिखना नहीं आता है। इशू एक ही है, एक है सामान्य हिंदी के नाम से है, सामान्य हिंदी के नाम में ग्रुप में डाल रहा हूँ फोटो, ठीक है, सामान्य हिंदी के नाम से ये कुछ ऐसा कवर है उसका, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ फोटो, ये ले लेना आप। इसमें सारे आपको, बट आपको थोड़ा चीजें मेमोरी बेस्ड बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक है, आगे आ जाओ, चलो चलो अब आ जाओ, चलो ये चीजें याद रखनी है। एग्जाम अब ना क्वेश्चन वाला कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, जैसे ये है 1 3 डाइपोलरोफाइल साइक्लो एडिशन डाइल सेलर रिएक्शन 6 पाई कंपोनेंट डिफर फ्रॉम, जो 6 पाई का कंपोनेंट है ना, वो डिफर है किससे, डाइल सेलर रिएक्शन से। इस रिएक्शन में जो 4 पाई का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, 1 3 डाइपोल। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे कि जो 4 पाई का कंपोनेंट है, इसमें हमेशा नोट शॉर्ट में अगर आपको लिखना है इसमें नोट करके, तो जो 4 पाई का कंपोनेंट है, 4 पाई कंपोनेंट डाइल डाइल सेल्डर रिएक्शन में क्या होता है, मुझे गाली कौन दे रहा है मेरे गले लग रहा, कौन है तुम में से, डाइल सेल्डर रिएक्शन। अब मैं सारा पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, बीच में आपको 12th में मिल गया, तो इसमें क्या होता है, ऐसा होता है, इसमें 4 पाई का कंपोनेंट ऐसा होता है, जबकि आप अगर इसमें जाओगे, किसमें, इस रिएक्शन में 1 3 डाइपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, तो इसमें जो 4 पाई का कंपोनेंट होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 1 3 डाइपोलर स्पीसीज, 1 3 डाइपोलर स्पीसीज, इसे याद रखना, 1 3 डाइपोलर स्पीसीज, बस ये होगा इसका कंपोनेंट, बस यही चीज याद रखनी है। और 2 पाई का तो 2 पाई होगा, वहां क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है ओके। इंग्लिश का
यार इंग्लिश खुद मुझे ही नहीं आ रही, मैं जब कि 8 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ। हाँ ऐसा नहीं मेरे बेसिक अच्छे थे तो कुछ चीज हो रही है, इसमें मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन मैंने कहा चलो कर ही देते हैं जरा, जब घर वाले कह रहे हैं। ऐसा है आप लोग क्या है इंग्लिश के लिए यार, मेरे को समझ ही नहीं आता इंग्लिश के कौन सा टीचर है। रानी मैम से तो मत ही पढ़ना, मैं आपको बिल्कुल फ्रिक्वेंट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मत जाना, रानी मैम का मत देखना आप लोग, एकदम अच्छा नहीं है वो। एसएससी लेवल का है, जिसको एसएससी बहुत अच्छे से आती है वो कर सकता है। फ्री के चक्कर में टाइम लॉस मत करना, कहते ही सोच रहे यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, वो आपका टाइम ज्यादा लॉस करेगा, फिर ज्यादा पछताओगे। साफ साफ कहना, सुखी रहना, जो एप्लीकेशन में क्लास होती है वो यूट्यूब पे नहीं होती है। ये कौन है शुभांगी मैम? पता नहीं यार शुभांगी कौन है, मुझे नहीं पता। अच्छा तो जहां आप पढ़ रहे हो, आप जहां पढ़ रहे हो पढ़ाने वाला मेहनत से पढ़ा रहा होगा, जिससे आप पढ़ रहे होगे वो अच्छा टीचर होगा। हर बंदा मेहनत करके आता है। हाँ हाँ, हर बंदा मेहनत करके आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ हाँ, अच्छा कोर्स है, मैंने देखा नहीं उनका, वो आप पढ़ रहे होंगे आप रिव्यू दे सकते हो, लेकिन जो बंदा पढ़ाता है वो मेहनत से आता है, हर टीचर मेहनत से आता है, अच्छा पढ़ाता है। बस थोड़ा सिखाने का अंतर हो सकता है, कोई 2 4 सिखाएगा, कोई 1 4। हाँ फिर नो इशू, ठीक है ठीक है, हाँ ओके ओके, ठीक है, हर बंदा मेहनत से आता है, तो आपको जो लग रहा है वो करो, ठीक है। मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, बेसिक से तो मेरे को उतनी दिक्कत किसी किसी टॉपिक में नहीं हो रही, जिनका हिंदी मीडियम रहा है उनको दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत होगी, मतलब उन्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कुछ भी। 40 42 नंबर हर बंदा ला सकता है अनसीन पैसेज और इनसे, बाकी जो है वो 30 35 नंबर एक्स्ट्रा की फाइट होनी है। अनसीन पैसेज सॉल्व करो दिन के एक, ठीक है, चलो आगे आ जाओ, चलो चलो आगे आ जाओ। आज तो मैं इतना फ्री रहा जितना मैं शायद मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ, इतना मैं कभी नहीं सोया हूँ। आज मैं सबसे ज्यादा सोया इस साल का अभी तक का। ये ऐसा है, पहले स्पेस में आपको इसको क्या करना है, इसकी रिएक्शन दे रही है किसके, ऐसा एक कंपोनेंट है, इसी से है। वहां पे एग्जाम में ऐसा देता है ना, कैसे वहां एग्जाम में थोड़ा ऐसा देता है, तो इसको खोल के लिखने सबको पता है। ट्रांस वाला स्टेबल होना है, आप जैसे आप लिखोगे तो पहले स्टेप में क्या करना है, 1 3 डाइपोलरोफाइल बनाना है। पहले स्टेप में तो यहीं पे रिएक्शन करवाता हूँ, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, इसके सामने डाइइन का कंपोनेंट ले आओ, आप बनाते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन यहीं पे रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, इसको इसके नीचे ले आओ, 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अगर आपको ऊपर ऐसा कोई कंपोनेंट दिख रहा है, तो 1 2 और 1 3 ऑप्शन में आंसर क्या पिक करना है, 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। मेरा सपना है यार आप में से ना सबका सिलेक्शन हो, उसके लिए मैं थोड़ा, मेरा हमेशा यही रहा अभी से, जिस बैच से स्टार्ट किया है भगवान की दया से, उस बैच से ही यही रहा है, 2018 से ही चला था, सोचा नहीं था। पहले ऑनलाइन लिया है ना बात, थोड़ा थोड़ा वो हो गया, कमी रह गई कुछ चीजों में, चलो उन्हें भी सुधारेंगे। ऐसा ऐसा आर आर, चलो ये ऐसा है, आपको ऐसा कुछ सिस्टम मिल गया, इस पे लोन पे है, इस पे लोन पे है। अगर आपने 12th की वीडियो देखी होगी, वहां एक ओजोनोइड इंटरमीडिएट जैसा कोई चीज बनाई है, वहां क्या बनाई है, एक ओजोनोइड इंटरमीडिएट जैसे कोई चीज बनाई है। तो मैं पहले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरा मन आ गया, मैं कब मैं पहले स्टेप में कुछ तोड़ फोड़ मचाना चाह रहा हूँ, कैसे इसको इससे बाहर कर लो, ठीक है, यहाँ सही करो, ये 2 पाई का कंपोनेंट रिएक्टर से सिंगल में कन्वर्ट करो। चलो अब मैंने कुछ यहाँ रिएक्शन करा दी, रिएक्शन दिख भी रहे मुझे कैसे, मैंने ये 2 पाई कंपोनेंट उठाया, यहाँ फेंक दिया, इसके 2 पाई लेके इसको यहाँ से बाहर भेज दिया, तो मेरे को क्या मिला, ए मेरा हे दगड़ा दूर चल जोला, दुई का दुई ऐसी खेली मोर मनोला, ना 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 मुझ संगे बड़ी कठिन, हे मेरा मन मोहना भारी रटन।
एक जाला झट रख जरा खबर मेरा भी। हाँ हाँ मैंने किया है यार, एक ही फॉर्म भरने का तो मौका मिला है नेट के बाद, मैंने किया है फिर। ठीक है आप पढ़ो, ठीक है जो पढ़वा रहा हूँ उसमें एकदम ऑथेंटिक, आप टेंशन मत लो। आगे आ जाओ, चलो करो जरा इसे, चलो आगे करो इसको। मैंने थोड़ा सही है, इसको यहां से ऐसा कर लो, इसको यहां से ऐसा कर लो, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आप दिमाग में ये मत सोचना इसने भरा हुआ तो इससे भी फाइट है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ छाप करोगे। और मेरा यही सपना है, ठीक है, एक टीचर का यही सपना है कि वो बोले उसके बच्चे हैं पॉलिटेक्निक में। ठीक है लास्ट ईयर हमारे स्कूल लेक्चरर में है बच्चे, लास्ट टाइम तक स्कूल लेक्चरर में हमारे बहुत बच्चे हैं पिछली बार वाले। जैसे नो खुद हम कोचिंग पढ़ाते थे, उसमें दीपक है मेरे सीनियर, सीनियर क्या दोस्ती जैसे हो गए थे, बट मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी 8th रैंक थी, फर्स्ट रैंक वाला भी हमारा बंदा ही था ऋषिकेश से। ओके अरे बरका ऐसा नहीं होता है, आप ये चीज दिमाग से पहले हटा लो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से अच्छा कर दोगे एग्जाम में। वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे 36 काम होते हैं, वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे। आप खुद देख रहे हैं, आज मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप आगे चलो, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, कुछ कमियां रही होंगी, मैं चाहता हूँ आप उससे आगे बढ़ो। जैसे नो हमारे बच्चे कुछ पोस्ट डॉक कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर में, आप भी जाओगे, ये मत सोचो ये मेरे पास खुद टाइम नहीं होता, मैं तो मेरा पढ़ाना ही एक उद्देश्य है, इसके ऊपर मैंने सोचा भी नहीं थी चीजें, पहले था पीएचडी करने का, लेकिन फिर मेरा कुछ मन नहीं हुआ। ओके आप टेंशन मत लो। अरे 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 ऐसा नहीं है, आप भी आओगे मम्मी का, मैं लिख के दे रहा हूँ, जो इस क्लास में पढ़ रहा, अगर ध्यान से करोगे जितना टॉपिक करवा रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं अपने लिए नहीं करता जितनी आपके लिए करता हूँ। ये दिमाग से हटाओ, जो क्लास में करवा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आएगा, आप कितना कर पा रहे हो। अभी मुझे फिजिकल करनी है, मैं सोच रहा हूँ एक बार आपका कुछ पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लूँ, फिर क्वेश्चन सेक्शन लेके फिजिकल में लास्ट में करवा रहा हूँ कि दिमाग में रही चीजें, क्वांटम उतर जाती है दिमाग से भाइयों वालों के। अरे यार आपको कुछ चीज बताओ तो फिर आप लोग, मेरे दोस्त ने कहा था यही कि उनको बोलना मत मैंने फॉर्म भरा हुआ है, फिर वो लोग उल्टे उल्टे क्वेश्चन करने बैठ जाएंगे क्लास में। मेरे सर भी कहते हैं ऐसा नहीं है यार, हर टीचर का सपना होता है उसके बच्चे आगे बढ़े, और यही मेरा सपना है, इससे ऊपर कभी कुछ देखा नहीं है। चलो आगे आ जाओ, आप खुद ही सोचो ना, वरना हम कोचिंग पढ़ाते हैं क्या। ये थोड़ा गॉड गिफ्टेड जैसी चीजें हो गई है कि पढ़ाना एक पैशन जैसा हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लो। हाँ आप लोगों को वही तो रोना है, और मैं क्या कह रही आपका तो पक्का है, तुम्हारा पक्का है, मैं कह रहा हूँ मेरे से लिख के ले लो, अगर मैं झूठ कहूंगा तो फिर कहना बात। चलो आ जाओ, इसको करते हैं पहले, ये टॉपिक खत्म करना है आज। तो खुशी इतनी है कि मुझे खुद ही लग गया था, क्योंकि आप लोगों का हिंदी स्ट्रांग नहीं होगा, वहाँ ग्रुप सी वाला आपसे आगे ना बढ़े। और चीजें याद करना, मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, आज की क्लास में इतना टाइम नहीं होता बातें करने का। हिंदी तभी याद होगी जब आप उसको कहानी जैसे बनाओगे। जैसे ना कोई भी चीज ऐसे मत करना, किसी भी चीज को ट्रिकी जैसे बनाने की कोशिश करना, वो आपको बताते होंगे, जैसे वो कुछ शब्द आते हैं, ठीक है, वो शब्द आते हैं, जैसे आपको कुछ याद करना है तो कोई कुछ नहीं करना है, कहानी बनाते जाओ पढ़ी हुई है, जैसे ना कहानी बनाते जाओ पढ़ी हुई, कहानी पढ़ी हुई है। जैसे एक कुछ अलमारी, ऐसे कुछ ट्रिक्स है यूट्यूब पे, एक अलमारी है, इसमें हमने एक बाल्टी रखी, बाल्टी में हमने तंबाकू रखा, तंबाकू के साथ हमने बाल्टी में तंबाकू रखा, तंबाकू के साथ आलबीन रखा, ये सारी किस भाषा के शब्द है। अंग्रेज की पतलून में आलू, कुछ भी चीज, ठीक है, अंग्रेज की पतलून में आलू, अंग्रेज की पतलून में आलू, कुछ भी चीज अगर आपको याद करना हो, ठीक है, अंग्रेज की पतलून में आलू, उसे परात में भरो, किस भाषा के शब्द है। ठीक है कुछ भी आपको पूछे, ये तभी होगा, याद नहीं करना, इनको बार बार पढ़ना है, सुबह शाम इनको पढ़ते रहना, याद नहीं करना, अभी भी कह रहा हूँ, इन चीजों को याद दी कहानी जैसे बनानी है, और उस कहानी को मल्टीपल वे पढ़ना है, तब दिमाग में घुसेगा। सेम ऐसे अंग्रेजी का सीन है, याद करने जाओगे तो क्रैक हो जाओगे, फिर वो एक दिन रहेगा, अगले से बार बार पढ़ने, एक कहानी जैसे बनाओ। ये है 10 नंबर का है, मुहावरे हैं जो 10-10 नंबर की कम कम चीजें हैं ना, जिसे उसे निपटाओ। जैसे एक अंग्रेजी हिंदी का सिलेबस दे रखा है,
ठीक है। और जो पढ़ता है ग्रुप सी की जो तैयारी करता है उससे डायरेक्शन लिया करो, ये कैसे पढ़ना है। अभी अमित को ले आता हूँ एक दिन, ठीक है, वो आपको बता देगा। जैसे लास्ट यूनिट 15 नंबर की है व्याकरण की, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टॉपिक है 15 नंबर के। अगर आप 10वां पॉइंट देखोगे हिंदी में, उसमें कितने यूनिट है? 15 नंबर की 10 यूनिट, 8 टॉपिक, 8 यूनिट्स है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 नंबर की 8 यूनिट है। और एक में आपके पास क्या दे रखा है? विराम चिन्ह। 5 नंबर का एक छोटा सा टॉपिक, मुहावरे, लोकोक्तियां, 2 टॉपिक, 10 नंबर। तो 8 टॉपिक करने में फायदा है कि 10 टॉपिक करने में स्टार्ट में निपटाने। जो ये कम कम चीजें इन्हें निपटाओ, बाद में ये करना जो कॉन्सेप्चुअल है। ये वाक्यांश के लिए 105 नंबर का है, 8 9 पेज होंगे उस बुक में, उन्हें पढ़ते रहना। फिर ये देखो, ये तत्सम तद्भव, देशज शब्द, देशज शब्द तो देखने ही में लगता है ठुंगी पुंगड़ी टेढ़ा, ये वो सब उन्हें पढ़ते रहना, ठीक है। ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक की वैकेंसी आएगी, वहां भी काम आएगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, यूपी पॉलिटेक्निक की वैकेंसी आएगी, ये वहां भी काम आएगा, यूपी पॉलिटेक्निक में। ओके, अब आगे है क्या? पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 से लेकर 8 9 तक सारे निपटा दो एक बार। 2 से लेकर 9 तक सारे निपटा दो, ये याद करने वाली जैसे चीजें हैं। पहला 10वां बचा, उन्हें एक एक कॉन्सेप्चुअली लेके चलो दिन के। ये बता रहा था हिंदी पढ़ने का, वो मुझे भी बताया है, जूनियर है एक लड़का अरविंद, उसे सिखाया भैया ऐसे पढ़ो। तो मैं बगल, वो बोलता भैया ये ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो अपने, चलो आगे आ जाओ। हम कहाँ थे, मैं वही भूल जाता हूँ। चलो आगे आ जाओ, इसकी रिएक्शन इस पे कराओ। आज बातें करने का मौका मिल रहा है तो इसलिए कर रहा हूँ। चलो आगे आ जाओ, इस पे क्या था? हे मेरा मन, आज मुझे ना खुद ही ऐसा लग रहा है मैं आज पूरे दिन पता नहीं क्या कर रहा हूँ। चलो आगे आ जाओ, 1 2 3 4, सही है। यहाँ पे चेक करना कहीं गलत तो नहीं क्या? 1 2 3 और एक 4, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे क्या है? एक एच। चलो चलो आगे आ जाओ। चलो इसकी इस पे और इस वाले का इस पे, तो क्या बनेगा? कितनी मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर रिंग ओजोनोइड इंटरमीडिएट। क्या बन रहा है? 5 मेंबर रिंग बन रही है, और आपका क्या बन रहा है? ओजोनोइड इंटरमीडिएट। आज मेरा ऐसा लग रहा है पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। ये जब टीचर का पढ़ाने का मन नहीं कर रहा ना, समझ लो ये कहानी है। इस कहानी से ये सीख मिलती, जैसे आज मैं लग रहा खुद ही मैं टाइम पास कर रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैं टाइम पास जैसे कर रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसा है, आपको ऐसा मिल गया। यहाँ पे क्या है? आर है, यहाँ पे क्या? आर, ये आपको मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर तोड़ना चाहूँ किसको, मैंने पहले तो कुछ, पहले इंटरमीडिएट कैसा बनाया था? पहले भी यही बनाया था, दोबारा ये बेवकूफ नहीं था, पहले भी वही बना, ओजोनोइड इंटरमीडिएट बनाना है भाई, क्या कर रहा है। चलो आप थोड़ा झेल लेना, मुझे ये समझना आज जब टीचर का, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब टाइम पास करना हो तो ऐसे किया जाता है। जैसे नो, अब बना सही ओजोनोइड इंटरमीडिएट। अब क्या बना? ओजोनोइड इंटरमीडिएट। चलो अब बना आपका ओजोनोइड इंटरमीडिएट। चलो इस पे 2 लोन पेयर एज इट इज, अटैक डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ने किया, ठीक है। और इसके, ये इस पे अटैक करेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे भी एज इट इज लोन पेयर 2। इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने अटैक कराया, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो इस पे भी 2 लोन पेयर एज इट इज। आपके पास यहाँ पे आर बचा हुआ है, इसके साथ एच है, तो दिस इज ओजोनोइड इंटरमीडिएट। ये क्या है? ओजोनोइड इंटरमीडिएट। आप लोग कुछ चीज लिखाता हो ना, आप पढ़ते नहीं हो। मैं ऐसा हो नहीं, कुछ चीज पढ़ाओ ना, कुछ चीज छूटेगी तो अगले दिन सही कराता हूँ। अब आपका Me2S है, क्या है? Me2S से रिएक्शन दे रखी है। चलो आगे आ जाओ। Me2S, Me2S, तो इसने क्या किया? Me2S ने इस पे अटैक करा दिया। इस पे अटैक करेगा तो यहाँ क्या होगा? ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, तो आपको क्या मिलेगा? आर, इस पे एच होगा, इस पे एच है और नहीं, 2 है, 3 और एक 4, तो यहाँ पे क्या? आर सी पे डबल बॉन्ड ओ और एच। यहाँ से भी क्या मिला? आर सी पे डबल बॉन्ड ओ और एच। यहाँ पे भी क्या मिला? ऐसा आर है इस कार्बन पे, देखोगे आप, ये यहाँ पे कार्बन है, उसके साथ एच है, आर है,
और C डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या आया S डबल बॉन्ड को 2 Ag। ये सुनो, यहाँ से ये बन गया। अब देखो जरा, आपकी इंग्लिश का खूब मेहनत करते रहना भाई, जो यहाँ आगे चले गया आप उनको पीछे कर दोगे जिनका आपसे कंपटीशन है। जैसे ना, चलो आगे आ जाओ। इस पेपर के लिए जी जान लगा दो जरा एक बार, पहले स्टार्टिंग पेपर के लिए। चलो यहाँ पे क्या बनेगा, RCHO, 2 मॉलिक्यूल RCHO के बने। इसका इंटरमीडिएट क्या बना, क्वेश्चन यही आएगा सबसे पहले। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड। ओके, आ गया। चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये टॉपिक भी है क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो कुछ लोग क्लास ही नहीं रहते हैं। रिएक्शन इसी से आपको 83N दे रखा है। क्या दे रखा है, 83N बेस है। ये क्या है, बेस। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन और स्टैक। तो क्या करेगा ये, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भेज देगा। तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। आज काफी टाइम लॉस कर दिया, मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, इतनी बातें नहीं हो रही, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा चलता ही चाहिए यार। या तो हमारे साथ अगर आप उस पर आ गई तो 1.5 घंटे भी तो ऐसा है। आपको आगे क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है क्या, कोई एसिड दे रखा है, जैसे MEOS दे रखा है, MEOS। तो ये क्या लेगा, यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, यहाँ से क्या लेगा, H पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा। अब आपके पास क्या है, ये इस पे ऐसा अटैक करेगा, यहाँ से इसको बाहर भेज देगा, यहाँ से क्या कर देगा, इसको बाहर भेज देगा। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा Me आया। परसों कुछ कह रहे थे सर आपने लास्ट क्लास बहुत स्पीड से कराई, ऐसा कुछ बनेगा। आप क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, इस पे पॉजिटिव। चलो आगे नेक्स्ट। इतनी स्पीड भी नहीं कराई थी यार। चलो N पे पॉजिटिव है, आगे आ जाओ। चलो आगे E3 क्या है, बेस का है, बेस नहीं आता। ये E83N सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। आज मेरा पता नहीं आपको भी लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो एक टॉपिक तो करेंगे। ये ऐसा जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ऐसा बनेगा Me और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। इस नाइट्रोजन, इस कार्बन पे 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन पे 1 2 3 और 1 5। यहाँ क्या बन रहा है, 5। चार्ज खत्म। मैं क्या कर दूं, मैं थोड़ा अगर ऐसा कर दूं तो कैसा, इसके इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस पे भेज दूं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दूं, तो क्या होगा, Me पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और N पे ये और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन 2 तो 4 तो 6, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। मेरे को क्या मिल गया, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आ गया जब, अब थोड़ा कहानी बन गई। अबे ओ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्ट कंजुगेशन पड़ा हुआ है सामने। यहाँ पे क्या, डायरेक्ट कंजुगेशन। मन नहीं कर रहा आज पढ़ाने का, बट कोई बात नहीं, इसको टॉपिक को करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद ही लग रहा है आज छोड़ देना चाहिए। आप लोग फ्री हो, मैं भी फ्री जैसा हो रखा हूँ। अगर ये यहाँ आएगा तो इस पे क्या आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, Me। मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे अरे पर का फिर बोले कि हम गधे हैं क्या, तो सीधा जवाब होगा परसों के। चलो
यहाँ पे क्या है Me ट्रिपल बॉन्ड कार्बन N और ऑक्सीजन पे नेगेटिव को दो लोन पेयर पहले से था, दो बाहर से आ गए तो दो, दो चार, दो छह और एक सात। ठीक है, बेसिक देखना, कुछ लोग बेसिक नहीं देख रहे हैं, उनको रीजन ये है वो कह रहे हैं ऑर्गेनिक ऐसा लग रहा है जैसे ब्लास्ट तब लगता है जब आप पढ़ते नहीं हो। तो यहाँ क्या हो गया, इस नाइट्रोजन पे एक दो तीन और एक चार, इस पे क्या हो गया पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। मैं क्या करता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन इसमें भेज देता हूँ, मेरे को यहाँ क्या मिल गया Me, मैंने इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भेज दिए। यहाँ देखो 83 बेस है, बेस का काम प्रोटॉन करना है, ये यहाँ डायरेक्ट कंजुगेशन में तो वहां पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पड़ा हुआ है जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में Me कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर बन जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव। अब देखो एक दो तीन, तीन और दो पांच, इस पे नो चार्ज, इस कार्बन पे क्या था कुछ भी था, एक दो तीन, इस पे क्या बना पॉजिटिव। यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसे सजाने के लिए इसको यहाँ पे बेंडिंग जैसा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है बेंडिंग जैसा हो जाता है, यहाँ पे ये बेंडिंग जैसा, रीजन ही यही है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे फेंकता है। ये जो लोन पेयर है इसका एक एक्स्ट्रा पेयर यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग होती है तो ये ऐसा जाता है, इसलिए इसको हल्का बैंड जैसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बैंड जैसा। और इस पे क्या बना पॉजिटिव। अब इसके सामने डाइन लिया हूं तो मैं इसके सामने अगर डाइन लिया हूं, ये आपने इतना बना दिया, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये इतना देखो, अब मैंने इसके सामने डाइन का कंपोनेंट लिया है, क्या डाइनोफाइल लिया है, इसके सामने क्या लिया है मैं डाइनोफाइल। ये आपका ये कंपोनेंट बना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव, क्या है कार्बन या N है, इस पे नेगेटिव है, या डबल बॉन्ड ये लोन पेयर है, इस पे क्या है पॉजिटिव, ये क्या है R, ये ऑक्सीजन। मैं डबल बॉन्ड लिया हूँ, किसी से भी लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा पहले स्टेप में, यहाँ पे कुछ भी लिया है मैं RH वही लिया है, तो यहाँ क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये दो पेयर इस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर बनेगा क्या 5 मेंबर, यहाँ पे क्या बनेगा 5 मेंबर कार्बन नाइट्रोजन। तो इस पे क्या है एक लोन पेयर पहले से है, नाइट्रोजन में क्या था एक दो तीन, तीन और दो पांच, दूसरा यहाँ से आ जाएगा। चलो आगे आगे, चलो चलो आगे आगे, बैटरी इज टू मच लो। ए तो यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, हाँ ध्यान रखो जो चीज बोल रहा हूँ। इस पे क्या बना हुआ ऑलरेडी बैटरी, अब बैटरी भी लो हो गई क्या, रुको आगे आ जाओ। इस पे कैटायन बना हुआ है, इस पे क्या बना हुआ कैटायन, इस पे क्या बना हुआ एनायन। हमने इस एनायन वाले पार्ट का अटैक इस डबल बॉन्ड पे करा है, तो ये इसने यहाँ बॉन्ड बना दिया, क्या है वो इसने यहाँ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, थोड़ा मैं एल्किन दूसरे, चलो आपने ये कर दिया, आप दूसरी रिएक्शन कराओ, दूसरी रिएक्शन कराओ इसमें, इस वाले कंपोनेंट में दूसरी रिएक्शन कराओ, ये हो गया होगा आपका। यहाँ पे क्या है, मस्ती अपनी जगह, थोड़ा सीरियस सा, आपको जैसे ऐसे एल्किन दे रही है ऐसे, ठीक है ऐसा दे रही है पहले, तो यहाँ पे इसकी स्टीरियो डिटरमाइन, ये ऊपर की साइड है ऐसे जैसे आपको दे रखा है, ये ऊपर की साइड है और ये क्या है डाउन की साइड। तो अब देखो मैंने अगर इसका एक एक्स्ट्रा पेयर का यहाँ बॉन्ड बनाया, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, वो अटैक करेगा किसमें वैकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ पे आके एक्चुअली होगा क्या, ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे आएगा इस वाले कार्बन पे, इस वाले CH3 पे, और यहाँ CH3 पे एक H पहले से पड़ा हुआ है, तो तीन बॉन्ड तो इस कार्बन ने बना रखे थे, एक दो और एक तीन, तीन सराउंडिंग में थे, दो पांच आए तो नेगेटिव, ऐसा अटैक दिखा तो यहाँ पे आता है। अब देखो वहां कार्बोकैटायन पड़ा वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ पहले एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। चलो ठीक है, जहां पे मुझे लगा ना मैं थोड़ा ज्यादा कैजुअल हो रहा, तो वहां फिर मुझे सीरियस होना बहुत जरूरी होता है। ये ऐसा आएगा,
यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म नहीं होगा, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पहले ही कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी हुई है। ये वैकेंट ऑर्बिटल ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे जो खाली ऑर्बिटल थी, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन जाके उन्होंने यहाँ पे ये बॉन्ड बना दिया। अब इसकी और इसकी स्टीरियो डिटरमाइनिंग होगी। ये कहाँ की साइड है? यहाँ पे ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, ये नीचे की साइड है इस लाइन से, ये यहाँ पे ऊपर की साइड है, ये अप है, ये डाउन है। तो इसका मतलब एक अप है और एक डाउन है, तो दोनों की स्टीरियो क्या आएगी? ट्रांस स्टीरियो। स्टीरियो क्या आएगी? ट्रांस स्टीरियो। मतलब एक को अगर आपने बिलो दिखाया है तो दूसरे को कहाँ दिखाना है? अबव द प्लेन दिखाना है। दूसरे को कहाँ दिखाना है? अबव द प्लेन दिखाना है। एक सेकंड है, थोड़ा मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आज ही कल होना था क्या? चलो, डेली क्लास में कुछ ना कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। चलो आगे आ जाओ, ये बंद हो जाएगा नहीं तो अभी अगर मैंने बोल के। एक सेकंड ना, चलो आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दो। ये हो गया होगा तो इसकी रिएक्शन इससे करवा दो, इसकी रिएक्शन इससे करवा दो, या ऐसा दे रखा चाहे ऐसा दे रखा, प्रोडक्ट बना के बता दो। अब तो ये कर ही लोगे, इतना इजी सर। एक सेकंड ना, थोड़ा मुझे लैपटॉप चार्ज पे लगाने दो। चलो आंसर, चलो आगे आ जाओ। थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया आज की क्लास में, जैसा लग रहा है डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गया, पढ़ाई कम बातें ज्यादा हो गई। चलो आगे आ जाओ। भूमिका, समझ आ रहा है भाई सारे लोगों के क्लास में? शिवानी, शिवानी समझ है? प्रियंका, शांत रहते हैं बिल्कुल ही शांत। चलो आगे आ जाओ, बता दो जरा दोनों का, चाहे अबव है चाहे डाउन है, तो बोन दोनों की स्टीरियो क्या आएगी? सेम आएगी। इससे रिएक्शन कराओ। ये जो यहाँ पे मैंने बोला, ये चीजें याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगी। चलो इस पे कार्बोकेटाइन बना होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑप्शन पे क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, मतलब एक पेयर एक्स्ट्रा आ रखा है, दो दो चार दो छह और एक साथ, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो जो अटैक कराता है वो एक्स्ट्रा पेयर वाला अटैक कराता है, इसका इस पे अटैक कराओ, इस वाले का वैकेंट ऑर्बिटल बॉन्ड बनाओ। तो बना दिया। स्टीरियो केमिस्ट्री, सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या आएगा? दोनों के दोनों एक जैसे, या तो ऊपर हो या तो चाहे ऐसे भी दिया हो। आज आज मुझे लग रहा है टाइम सही से यूटिलाइज हो। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। ये तो तब हुआ ना जब मुझे लगे पेपर बाद में। तो दोनों की स्टील क्या आएगी? एक जैसे, CS3। दोनों की स्टील क्या आएगी? सेम आएगी। चलो ठीक है प्रियंका, आगे चलो नेक्स्ट। थोड़ा करवाता है मेरे को ना, वरना। चलो चलो आगे आ जाओ। चलो एक रिएक्शन दे रखी आपको, ये तो कल हो गया। ये गेट प्रीवियस ईयर का था, गेट 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था, गेट 2018 में, सेम एज इट इज क्वेश्चन। आगे आ जाओ नेक्स्ट। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की डेट का। अब पेरीसाइक्लिक को ऐड करते हैं। चलो आगे आ जाओ। आप वहां कमेंट करना, ऐसा तो नहीं हो गया मैंने आज ज्यादा ही गप लगा दी, मैंने ज्यादा टाइम लॉस तो नहीं किया। मैं इसे कहता हूँ ना, पढ़ना बहुत बात की बात है। पढ़ने से पहले आपको, अगर इसलिए कर रहे हो ना केवल जॉब मिले, मैक्सिमम मोटो यही होता है, लेकिन ना पढ़ने के लिए थोड़ा कुछ सीखना जरूरी है, ठीक है? पढ़ाई जॉब जुब तो बात की, जॉब तो आप ऐसे भी कर लोगे, नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं जहाँ इंटरव्यू में जाओगे 5 को बाहर कर दोगे। और अगर आप में टैलेंट है तो कोई चीज मुझे लगता नहीं है कोई इशू है। पढ़ने के साथ आपको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। जैसे नो,
पढ़ा लिखा जयराम जी की। गलत को भले गलत को, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है ये नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। चलो आगे आगे। आप लोगों ने कल से मुझे कुछ तो कह रहे थे सर, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हुआ है, देखो कुछ चीजें भगवान आपके लिए बहुत अच्छा करता है, और कुछ ना कुछ इसका सीख क्या बनेगा। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने है, आगे आ जाओ। ठीक है चलो आगे आ जाओ। अच्छा गाइडेंस दोगे ना तो गाइडेंस भी बेकार होता है, कुछ लोग कहते हैं खुद तो आता नहीं है। ठीक है, जब मैंने पढ़ा है तो मैं तब आपको कह रहा हूँ, और अगर आप एक साल पहले पूछते मुझे, 6 महीने पहले, तो मैं कुछ नहीं बोल पाता। चलो यूकेपीएससी का सिलेबस बहुत अच्छा आता है। अगर आपने ईओ का पेपर किसी ने देखा होगा, मैंने पेपर भी देखा, हाँ मैंने पेपर देखा था, ईओ का पेपर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। हिंदी सर्च करना, हिंदी यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम, तो ये पेपर मिल जाएगा आपको सीधा यूट्यूब पे, उसे सॉल्व करते रहना। वहां से देखा आपके पढ़ाई हुई चीजें। पहला क्वेश्चन ET3 एंड बेस है, बेस का काम प्रोटॉन अब स्टैक है, इसके MUH कुछ नहीं दे रखा है। तो अब आपको पता चल गया, यहाँ से रिएक्शन करनी है। मैं होता तो मैं सीधा इसको उठाता यहाँ पे, मैं सीधा इसको उठाता यहाँ पे, मेरे को तो पता है ये बनना है, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ से ये बनना है। मैं इसको उठाता, इस पे रिएक्शन करता, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो आप इसको घर से करने की कोशिश करना, क्या बनेगा, H2NI का काम क्या है, H2NI का काम क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। ये मैंने कल करवा रखा है, इसके लिए मैं कल मिलता हूँ आपको, ठीक है, तब तक के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा खुद पढ़ाने को वो नहीं हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, मैं सेकंड क्लास देखता हूँ 11:30 बजे।